audible? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening to all of you. Let's begin today's class. Good evening. I want to request you to turn on your videos first. After that, I will start today's class. This is necessary. Akansha ji, good evening. Am I audible properly? Yes, Okay. audible. Okay. Yeah. Okay. So let's begin. First of all, today is our day first. So first, uh, I want to introduce myself. After that, you also have to introduce yourself. Okay. So my name is Ekta Lalwani, and I'm from Dali Rajra. I'm a teacher, and I have 8-year experience in this field. And now I'm working as a spoken English trainer. Okay. So Amrita and Aman, start from you. Okay, start. Firstly, I speak. Yeah. You have to speak firstly. My name is Aman Kumar Yadav. I am 12 years old. I am reading class 6 in DAP Public School, Chadia, Jharkhand. But I am from Bihar, but I am live in currently Jharkhand. Okay. Nice. Okay, Amrita, it's your turn. Good evening, everyone. My name is Amrita Yadav. I am from Jharkhand, and Okay. I am studying in class. I am studying in class 9. 8 या 9 बोलो जो भी. I'm studying in class 9 and my hobbies are singing and learning English grammar and I want to become a doctor. Thank you for listening to me. Thank you. Nice. You have explained very well. Yeah. Nice introduction. Okay, Akansha ji, it's your turn. Hi, myself Akansha Rathod. Actually, I'm Dr. Akansha Rathod and I'm dentist by profession. I'm here with all of you. My network is clear or not? Yeah. Speak. Sometimes it's breaking, but I'm getting what you want to convey. Yeah, you're audible. I'm from Delhi Rajra and I'm dentist by profession. Okay. Yeah. Nice. Nice to see you. Okay. Devika, it's your turn. Good evening, everyone. My name is Yadu. I'm in class 11. I am from I think maybe there is a network issue. Okay. So let's begin today's class. Today we are here. Some few students also will join from tomorrow because of time issue. They will join from tomorrow. So we are beginning today's class, and today we will start from the beginning. Okay. You want to, if we want to learn any language, so first we have to understand from the basics. Okay. So I'm asking some question to you. You have to answer. Okay. How many alphabets in English? 26. 26. Okay. Okay. In English, there is a 26 letters. In alphabet of English, there is a 26 letters. Okay. Now I'm sharing one PDF. Okay. But before sharing PDF, I'm just explaining. Okay. देखो वर्ड से क्या बनते हैं, लेटर से क्या बनते हैं. If we combine some letters in a proper sequence, so we get the word. Okay. And when we combine some words in a proper sequence, so we get the sentence. And when there are proper sentences, so in this way we can make a paragraph. After that, what? Language.
language. So it's a base of every language, any language. ठीक है. So for learning English, what do you think? In which area we have to work? अगर हमको इंग्लिश बोलनी है तो हमको किस एरिया में वर्क करना पड़ेगा? फर्स्टली वर्ड्स. Words is necessary. If you know the right word, so you can speak. So first thing is words. किसको क्या बोलते हैं, है ना? हमारी वोकैब्स अच्छी होनी चाहिए. दूसरी चीज होती है सेंटेंस फॉर्मेशन. ठीक है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए कि पास्ट में कोई चीज है तो कैसे बोलेंगे, है ना? फ्यूचर में कोई चीज है तो कैसे बोलेंगे. तो हमको होता है सब्जेक्ट और एक होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आपको एक सेंटेंस बनता है. आप म्यूट रखेंगे खुद को, है ना? म्यूट रखेंगे. रेनू जी, रानू जी, म्यूट योर सेल्फ. 1 minute. ओके. तो देखो, सेंटेंस बनाना है हमको. इस क्लास में वर्ड सीखने, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे और हम ज्यादा से प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज द ऑल ऑफ इंटरेक्टिव सेशन. ठीक है. तो इस क्लास के कुछ रूल रहेंगे. आपको लिखना नहीं है क्लास में कभी भी कुछ भी. ऐसे नहीं कि हाँ ये मैम ने बताया इसको मैं लिख लेती हूँ, भूल गई तो. पेन तो उठानी ही नहीं है, पहली बात है इस क्लास की. किसी के हाथ में पेन तो नहीं है ना? आकांक्षा जी, No, डू यू ma'am. हैव पेन एंड कॉपी? No, ma'am. No, you have to. You don't have, na? You don't have to write in live class. I will send the PDF, everything. Just listen to me, and if you are present है ना, you will also answer. अगर आपका ध्यान लिखने में होगा ना, if your attention in writing, so you unable to present in the class. ठीक है, ज्यादा difficult नहीं है. There is a nothing difficult in English language. It's only a language. There is a no need to write now. After the class, you can write important points. Okay? ठीक. अब देखो सेंटेंस भी जो बनता है ना हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ में आ गया. ठीक है. अब देखो, मैं खाती हूँ, मैं खा रही हूँ, मैंने खाया. हिंदी चेंज होता है ना, खा रही हूँ, खाया, खाऊंगी. हिंदी में वहां चेंज हो रहा है. इंग्लिश में क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है. क्या चेंज होता है इंग्लिश में? दो चीजें चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म. बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है. जैसे मैं खा रही हूँ, मैं तो मैं ही रहूंगी, है ना? वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब वही चेंज होती है और वही चीज को हम सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हमको समझना है. ठीक. तो अब हम सबसे पहले आते हैं अपने सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है. तो चलिए अब थोड़ा सा मैं पूछती हूँ, है ना, सब्जेक्ट के बारे में आपसे. ठीक है. मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आकांक्षा जी? मैं हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, अनम्यूट. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. Unmute, हाँ. There is a tab, mute, mic in front of you in screen. Press that mic. Your voice is not coming. Okay, मैं यहाँ से करती हूँ. अच्छा, नेटवर्क ठीक है. My voice is coming ना? You are unable to answer because of network. It's okay. I'm continuing. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब सब्जेक्ट में मैं, हमको सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, किसको किसको क्या बोलते हैं. देखो, सब्जेक्ट कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है. तो नाम रहेगा तो नाम वो सब्जेक्ट हो गया. जैसे मैं खा रही हूँ, खाने का काम मैं कर रही, तो मैं सब्जेक्ट हुई. ठीक है. तो आई, मैं. ठीक है, अमृता बताओ, सारे सब्जेक्ट बताओ. I. हाँ, मैं हिंदी बोलूंगी और आप ना इंग्लिश बोलना. ठीक है. हाँ. मैं, I. एंड हम, We. हम,
बी। ओके, आप? You. अमन, इट्स योर टर्न। वह Yes. लड़की है, वह क्या वह. बोलेंगे? हाँ, लड़की, वह को क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन होता है ना। She. शी है ना, लड़की है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। जैसे मैं और हम क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं। जब हम कोई खुद काम करे, मैं और हम, इसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। आई और वी। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन हुए। तो आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? You. आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू बोलते हैं आपको, ठीक है। अब वहीं पर अगर कोई थर्ड पर्सन हो, मतलब हम दो बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, ठीक है। सो इन दैट टाइम दैट कैन बी मैन और वुमेन। सो इफ दैट पर्सन इज वुमेन, so in that time what we can say? She. शी, ठीक है। और वहीं पर अगर वो मैन हो, लड़का हो, तो क्या बोलेंगे? बॉय हो तो He. ही बोलेंगे। और वहीं पर है ना, निर्जीव चीजों के लिए, थिंग्स के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली याद रखने, हर एक सेंटेंस। तो हमने बात की सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने समझा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, है ना। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्प करती है हमको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर है, किस फॉर्मेशन का है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में बेसिकली आती है वॉज वर, इज ए मार, विल, शैल, है ना। और क्या आता है आपका? कैन, कुड, ये सारी है ना, मोडाल वर्ब्स है ना, वो सब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो ये हम लाइन से धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज। सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कोई इंसान भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट, क्योंकि खाना खाने का जो काम है ना, वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और खाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। खाना, खाना 2 बार आ रहे हैं। एक क्या है? आपकी वर्ब है, दूसरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को भी समझना है हमको। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, है ना। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक आपका प्रेपोजिशनल। कभी कभी ऐसा होता है ना, बाय, आई वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ऐसा बोलते हैं। तो बाय ट्रेन आया, तो जब बाई के साथ ट्रेन लग गया ना, तो उसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इन सब का यूज हम आगे करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग वन पीडीएफ एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू समथिंग एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग की जानकारी आपको दे दी कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी, है ना। आपको 5 से 10 मिनट उसमें मैंने जो भी रहेगा उसको टीच करूंगी। उसके बाद ना हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पढ़ाते तक आप लोग म्यूट रहिएगा। मैं जब बता दूंगी तो आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यू विल गेट 5 मिनट्स, ओके। इन दैट टाइम यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करें लर्निंग। अभी तक जो चीजें थी ना वो बेसिक थी। क्लियर है सब्जेक्ट क्या होता है? सबको क्लियर है इतना? सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, है ना। जो भी हम, मैं, हम, तुम, आप, ये सब बोलते हैं वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं। तो एक छोटी सी फॉर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं आज से और प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। सो वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द पीडीएफ। ठीक है, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट है ना। और हम फॉर्मेशन वाइज पढ़ेंगे। ग्रामर सब आ जाएगा फॉर्मेशन में, हमको एकदम अलग से कोई ग्रामर वैमर पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर्मेशन वाइज पढ़ते हैं, ग्रामर थोड़ा बहुत अलग से भी पढ़ेंगे जो नेसेसरी होगा, ठीक है। दिस क्लास इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो लर्न, लिसन मी एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है। तो देखिए, दीज मतलब क्या होता है?
यह होता है। और वहीं पे अगर मैं THES ही लिखूं दीज, उसका मतलब होता है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? THIS वाला जो दिस है ना, वो आपका ना सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो टी कोई रिपीट नहीं करेगा, है ना? म्यूट रखिए खुद को, ठीक है। THIS दिस मतलब होता है यह। अगर मेरे को ऐसा कुछ बोलना हो कि यह, जैसे कि मेरे हाथ में अभी ना एक पेन है, मेरे हाथ में अभी एक पेन है। अगर मेरे को बोलना हो यह पेन है, ये एक सेंटेंस हुआ ना, यह पेन है, मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये पेन है, ठीक है। तो यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस बोलते हैं, ठीक है। है बोलना है हमको, ठीक है के लिए यूज होगा इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज MR, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। और ये होता है बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब होना, बी मतलब होता है होना, और बी फॉर्म का ये फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। इज MR तीनों का मतलब ही है के लिए यूज होता है। हम आई के साथ एम यूज करते हैं, ठीक है। और सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। और जब कोई चीज प्लूरल होती है तो हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। ये रूल है आपका। तो दिस, यह, दिस मतलब यह है बोलना है तो क्योंकि एक है ना पेन, तो मैं क्या बोलूंगी? इज बोलूंगी, दिस इज। उसके बाद सामने लिखा है ए और एन, ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है? एक को बताता है। ये जो ए और एन है ना, उसका यूज हम करते हैं एक बोलने के लिए, है ना। अब यहाँ ए और एन में आपको डाउट हो सकता है, ए कब यूज करते हैं? जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है कि देखो, इंग्लिश में ना 26 लेटर्स होते हैं, 21 लेटर आपके कॉन्सोनेंट हो गए, व्यंजन। AEIOU क्या हो जाता है? स्वर। तो जिन शब्दों को बोलने में आपका साउंड AEIOU वाला निकले बोलने पे, तो उसके पहले ना एन लगता है, बाकी सबके पहले ए लगेगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि सिंगुलर होना भी नेसेसरी है आपका चीजों का, ठीक है। देखो हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि यह एक पेन है, लेकिन इंग्लिश में आ, हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं यह पेन है, लेकिन इंग्लिश में ए और एन लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है। तो अगर मैं बोलूं ये पेन है, ये पेन है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अ पेन। क्या बोलूंगी? दिस इज अ पेन, क्योंकि ये एक है। अगर यहीं पे मेरे को उसको निगेटिव बोलना हो, तो निगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नॉट लगाया जाता है। सामने लिखा है दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है, ये पेन नहीं है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बाद नॉट लगाएंगे। और वही आपको अगर अपना सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है, आपको पूछना है क्या ये पेन है, अब उस हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ेगा। देखो कभी क्वेश्चन पूछना होता है तो हमको सामने आना होता है, खड़ा होना पड़ता है ना पूछने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना पड़ेगा ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज दिस अ पेन? इज दिस अ पेन? ठीक। तो अब इस सेंटेंस को मैं तीनों में बोल के बताती हूँ आपको। दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, इज दिस अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, आपको वो वे से बोलना है ताकि वो लैंग्वेज जैसा लगे भी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज में, अगर आप सीधे सीधे बोलोगे तो सामने वाले को क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, सामने वाले को एक आध चीज समझ नहीं भी आएगी तो भी वो आपके इम्प्रेशन से समझ जाएगा चीजों को कि हाँ ये यही बात बोल रहे होंगे, ठीक है। तो आप सब इसका ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था। इसके नीचे देखो प्लूरल का है ना, जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया वो क्या था? सिंगुलर का था। मेरे पास वो पेन अभी सामने तो है नहीं, ठीक है। समझ लो दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज ऑल्सो अ पेन। अगर यही चीज अगर आपको प्लूरल में बोली, मतलब ज्यादा है चीजें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? वो वाला दिस लगाएंगे। कौन सा वाला? ESE वाला, THIS वाला नहीं लगेगा। अगर आपकी चीजें प्लूरल है, ज्यादा है, अगर आपको बोलना है कि ये पेने हैं, तो आपको ये वाला दीज यूज करना पड़ेगा। दिस, दीज, थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा स्ट्रेच होता है दीज। अगर ये वाला दिस यूज करेंगे, प्लूरल चीजें होंगी, तो आपको उसके साथ यूज करना पड़ेगा आर, दीज आर। अब यहाँ पे सवाल नहीं उठता कि आप
आर्टिकल लगाएं। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ही ए और एन का एक था। ठीक है, तो अब एक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो चीज है वो क्या है, प्लूरल है, अब सिंगुलर नहीं है। ठीक है, तो मेरे को बोलना है ये पेने हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, दीज आर These पेन्स। pen. ओके, दीज आर पेन्स, पेन्स है ना। यहाँ पे नंबर, थोड़ा सा ग्रामर हम आगे पढ़ेंगे कोर्स पे। तो नंबर मतलब क्या होता है कि आपको सिंगुलर को प्लूरल, है ना, एस लग जाता है, कहीं ई एस लगता है, कहीं थोड़ी चीजें फॉर्म चेंज होती है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो पेन का ना पेन्स बनता है, बॉटल का बॉटल्स, है ना। तो ऐसे ई एस और एस से ज्यादातर चीजें प्लूरल बन जाती है हमारी। ठीक है, तो दीज आर पेन्स। Pens. अगर आपको निगेटिव बनाना है तो दीज आर नॉट पेन्स। The pens. इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर दीज पेन्स, Are the pens. पेन्स। ओके, सो ये आपका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है दीज वाला। दीज मतलब यह। ठीक, नेक्स्ट, यह का, यह मतलब दिस। अगर मुझे, अब यह कब कब यूज करते हैं हम, जब कोई चीज पास हो। देखा ना आपने कि मेरे हाथ में पेन थी, बहुत ही पास थी, तो मैंने किसका यूज किया, दिस का। बट अगर आपके पास नहीं कोई चीज, है ना, ये सब आप ना मतलब इंडिकेट कर रहे हो ना, ये इंडिकेशन वाले वर्ड्स हैं, दिस, दैट, यहाँ, वहाँ, है ना, यह, वह, तो इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो वैसे ही अगर मेरे पास जैसे ये एक बॉक्स है जो थोड़ा दूर पे रखा हुआ है मेरे, ठीक है, तो मैं अगर उस बॉक्स को बोलना चाहूँ कि वो बॉक्स है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बॉक्स, दैट इज अ बॉक्स। पास की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दिस का, और थोड़े दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दैट का। दैट इज द बॉक्स, वह बॉक्स है, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज द बॉक्स। तो अगर आपका जो चीजें हैं, आपके जो थिंग्स हैं, इफ दैट थिंग्स आर सिंगुलर, सो आप यूज करोगे दैट। और हमको तो पता ही है कि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। ओके, दिस, दैट, इज। ओके, एंड आर्टिकल में अगेन आपको देखना है कि साउंड क्या आ रहा है, बॉक्स, बॉक्स है ना, तो यहाँ पर तो कोई आपका वॉवल वाला साउंड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ए, दैट इज अ बॉक्स। ठीक है, अब यहीं पर अगर उसको हमको निगेटिव करना है, तो हम कैसे बोलेंगे, दैट इज नॉट अ बॉक्स, और यू कैन से दैट इजंट अ बॉक्स, दैट इजंट अ बॉक्स, दैट इजंट अ बॉक्स, है ना, कोशिश करना वे लाने की। And our interrogative sentence we can make like that way, is that a box, थोड़ा आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, is that a box। ओके, ये चीजें हुई। काव्या की बर्थडे भी है और उसी दिन जरूर तो हम जब आप लोग इंश्योर रखोगे कि यू आर म्यूट और नॉट। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब मैं एक और सेंटेंस बनाती हूँ। बर्थडे भी जाना है। ठीक है, मेरे पास एक डायरी भी है जो थोड़ी दूर में रखी हुई है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, दैट इज अ डायरी, दैट इजंट अ डायरी, इज दैट अ डायरी। ओके, तो ये चीजें हुई। अब अगर दो डायरी है मेरे पास वैसे, तो अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना हो तो दैट है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज। क्या यूज करेंगे, दोज। वह के लिए यूज होता है, वे डायरियां हैं, वह डायरी है। अब ज्यादा रहेगी तो वे ही आ जाता है नेचुरली हिंदी में, वे डायरियां हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर डायरीज, दोज आर डायरीज। निगेटिव बनाना है तो दोज आर नॉट डायरीज। इंट्रोगेटिव बनाना है तो बोलूंगी, आर दोज डायरीज, आर दोज डायरीज। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज द टाइम टू डू प्रैक्टिस। अब मुझे बताइए कि अभी तक मैंने ना दो चीज बताई, मैं क्विक रिवीजन लेती हूँ, दिस और दीज। दीज मतलब होता है यह, और दीज मतलब होता है ये। हम जो टी एच आई एस वाला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और टी एच ई एस सी वाला हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। Plural के लिए। गॉट इट, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब जो दैट और दोज में क्या था, टी एच ए दूर टी, के लिए। दैट, दैट का यूज हम करते हैं दूर के वह लिए। के लिए,
सिंगुलर, है ना। और दोज का यूज करते हैं हम लोग प्लूरल चीजों के लिए, दोज आर। ठीक है, डे 1 से वी हैव टू स्पीक, दिस इज द रूल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब इन दो फॉर्मेशन से हाउ मच you sentence you can make, you how many sentence you can make, so much, so many sentence। ठीक है, तो चलो बैक टू बैक सेंटेंस बनाने, बैक टू बैक। आर यू रेडी फॉर दैट? ठीक है, तो मैं हिंदी बोलूंगी, आप इंग्लिश बोलोगे, है ना। अमन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हिंदी बोल रही हूँ, इंग्लिश बोलना आपको। ठीक है, यह फ्रिज है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। हाँ, यह फ्रिज है, ध्यान देना मैं सिंगुलर बोल रही हूँ कि प्लूरल बोल रही हूँ, उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, बोलिए, यह फ्रिज है। This is a fridge. हाँ, थोड़ा सा माइक अपना सामने रखो ना। This is a fridge. जी, अब बोलो, बोलो बोलो। This is a या fridge. दिस इज द फ्रेज। ये फ्रिज नहीं है, ये फ्रिज This नहीं is है। not. फर्स्ट, This is not a fridge. क्या ये फ्रिज है? Is this is this a fridge? हाँ, इज इज अ फ्रिज। अमृत, दैट्स योर टर्न। वो दीवार है, वह दीवार है। That is a wall. हाँ, मैंने अब पूरा अफर्मेटिव बनाते 5। यह पर्दा है। This is the curtain. ये ट्यूबलाइट है। This is a tube light. ये पौधे हैं, ये पौधे हैं। These are plants. ओके, वे दरवाजे हैं, दरवाजे, Those are दरवाजे। doors. हाँ, ओके, वे खिड़कियां हैं। Those are windows. ओके, क्या वो पर्दा नहीं है? Is this not a curtain? इज दिस नॉट अ कर्टेन? ओके, क्या यह मोबाइल नहीं है? क्या ये मोबाइल नहीं है? Is this not a mobile? ओके, क्या अम, क्या यह दही है? दही, Is this a curd? अकर्ड नहीं आएगा। दही है ना, दही गिन नहीं सकते हम दही को। इज दिस कर्ड? अनकाउंटेबल है दही, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, जो चीज अनकाउंटेबल है उसके पहले ए और एन का यूज आप कभी नहीं करना, वहां पे नीड ही नहीं है आपको आर्टिकल की। ठीक है, देयर इज अ नो नीड ऑफ आर्टिकल इन दैट टाइम। ठीक है, इज दिस कट? ओके, नाउ हरिकट, योर टर्न। ये टेबल है, ये टेबल है। This is table. हाँ, दिस इज द टेबल। वह कुर्सी है, वह कुर्सी है। That is बोलो बोलो बोलो। दैट इज अ चेयर। that is a chair. दैट इज अ चेयर। ओके, वे हाँ, वे बॉटले हैं, बॉटले। Those are क्या bottles. बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बॉटल को? आई डोंट नो, डू यू नो? बॉटल, बॉटल ही बोलते हैं मे बी हिंदी में। बोतल, बोतल। हाँ, ठीक ठीक। नेक्स्ट, वे कॉपियां हैं। Yeah. हाँ, कॉपियां। कोई डाले That is a सामान copies. वे कॉपियां हैं, दोज आर कॉपीज, दोज, Are दोज आर copies. कॉपीज, है ना, प्लूरल है ना, प्लूरल है चीजें। ठीक है, उसके बाद यह गिटार है। Yeah. This is guitar. ओके, ये वह चम्मच है, चम्मच। That is spoon. दैट इज अ स्पून, ए आएगा ना, गिन सकते चम्मच को। दैट इज अ स्पून। ठीक है, वे प्यालियां हैं, प्यालियां। Those are onions. और नहीं, प्याज नहीं, प्यालियां बोलिया हमने, प्यालियां। प्याली, प्याली खाते ना सब्जी, प्याली। हाँ, मुझे पता तो नहीं। हाँ, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं प्याली को इंग्लिश में?
कटोरी, बाउल, बाउल, Bowl. बाउल, ठीक है, बाउल, दोज आर बाउल्स, ठीक। Those are नेक्स्ट वे, हाँ, उसके बाद हम लेते हैं वे टमाटर है, Those are tomatoes. टोमेटोज, टोमेटोज, Tomato. ये शिमला Tomatoes. मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, Yes. This is शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ओके, this is कैप्सिकम, capsicum. Capsicum. कैप्सिकम, ठीक। नेक्स्ट, ओके सिद्धार्थ, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, इट्स योर टर्न टू डू प्रैक्टिस। ये दीवार है, This is a wall. हम्म, ये बाल है, This is a hair. ए नहीं आएगा, गिन सकते हो, ए है एक ही Hair. उसमें भी एक ही है, आई टोल्ड यू, ये बाल है, उसमें भी आपको एक ही दिख रहा है, दिस इज अ हेयर, अ हेयर, ठीक है, गिन ही नहीं सकते, है ना। देखो, हेयर इज बोथ, हेयर काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, ये भी याद रखना ना। अगर आपके हाथ में 2 से 3 बाल है, आप बोल सकते हो दीज आर 3 हेयर्स, लेकिन अगर आपने बाल अपने हेड में बोल रहे हो कि ये बाल हैं, तब आप उसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो उस टाइम जो हेयर है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, बोथ है, वो काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे ही तारे जो होते हैं ना, स्टार्स, उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है। हर वो चीज जिसको हम लोग यूनिट वाइज ऐसे नॉर्मली गिनते हैं ना, 1 2 3, वो सारी चीज काउंटेबल होती है, ठीक है। और उन चीजों को जिसको हम लोग ना यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि समय को सेकंड में बोलते हैं, तो समय नहीं गिन सकते, हम सेकंड गिन सकते हैं, समझ रहे हो। तो जिन चीजों को हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे दूध को हम लोग नहीं गिन सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए एक यूनिट बनी है, समझ रहे हो। बीच बीच में हम लोग ऐसे चीजें ले लेंगे जो जो डाउटफुल रहेगी, तो दूध को यूनिट में मेजर करते हैं, तो दूध क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। ज्वेलरी आपकी अनकाउंटेबल है, क्योंकि ज्वेलरी 1 2 3 नहीं बोल सकते, उसके लिए आपकी यूनिट्स है। क्या यूनिट्स है? कि वो इयररिंग है, कि नेकलेस है, क्या है, ठीक है। तो ज्वेलरी भी क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल। वैसे ही आपका हेयर अगर ये है बाल, उसका बोल रहे हो, तो वह अनकाउंटेबल। स्टार्स काउंटेबल होता है, अगर वो स्काई नहीं बोल रहे जब तक, तब, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, स्टार्स को भी हम लोग 1 2 3 करके गिनेंगे ना, ठीक। तो ये चीज है, चलो देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, यह कंपास है, कंपास, This is a कंपास compass. को इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, और जो जिसमें सब रहता है ना, आपका स्केल वगैरह सब कुछ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। दिस इज ज्योमेट्री बॉक्स, ओके। नेक्स्ट, वह लिफाफा है, लिफाफा, क्या बोलेंगे? दैट इज, That वह, is हाँ, क्या बोलते हैं लिफाफे को इंग्लिश में? envelope, एनवेलप, एनवेलप, ओके, एनवेलप, दैट इज एन एनवेलप। देखो यहाँ एन आएगा ना, ए आ रहा है, ए क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनवेलप, दैट इज एन एनवेलप, अगर एक है तो। अगर वो ज्यादा है तो क्या बोलोगे? दोज आर एनवेलप्स, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, यह सुई है, सुई क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नीडल, ठीक है, नीडल बोलते हैं ना, सुई। दिस इज, दिस इज अ नीडल, ओके। needle. नेक्स्ट, नीडल, ओके। यह गाजर है, गाजर, This is a carrot. गाजर है, दिस इज अ कैरेट, ओके। नेक्स्ट, ओके आकांक्षा जी, इट्स योर टर्न। यह आसमान है, That is sky. हाँ, दिस इज स्काई, ओके। ये आसमान नहीं है, ये आसमान नहीं है, Not a आप ही sky. ने बोला ना, आसमान नहीं है, ओके। क्या ये आसमान है? Is this a sky? गुड। नेक्स्ट, वह
चिड़िया है, चिड़िया। पक्षी बोलते पक्षी। That is a bird. हाँ। क्या वह चिड़िया है? That is a bird. हाँ। इज दैट अ बर्ड? क्या बोलेंगे? इज दैट अ बर्ड? ओके। वे अम, हाँ, वे लोमड़ियां हैं, लोमड़ियां। ठीक है। Those are foxes. हाँ, दोज आर फॉक्सेस। क्या वे हिरन है? क्या वे हिरन है? Are they are deers? देखो, वे हिरन है, दोज आर डियर्स। क्या वे हिरन है? आर दे, आर नहीं, आर, क्या वह है ना, क्या वह Are बोलेंगे they ना, आर दोज डियर्स है ना, आर दोज। deers? ठीक है। नेक्स्ट, वह पैरदान है, पैरदान। क्या बोलते पैरदान को इंग्लिश में? वह पैरदान है। डोरमैट। That is doormat. हाँ, डोरमेट। हाँ, तो क्या बोलेंगे? वह पैरदान है। That is a doormat. हाँ, दैट इज द डोरमेट। ओके। यह वो है, दवात बोलते हैं, हिंदी नहीं पता होगा मे बी, इंक पॉट। इंक पॉट। वह दवात है। हाँ। That is import. यह बोले कि वह बोले? दैट इज वह मेरे को याद वह। नहीं। वह बोलेंगे ठीक है। शायद। ठीक है, वह का ही बोल लीजिए आप। That is import. Yeah, this is import. जी, लेकिन आपको ए और एन लगाना है। अब इंक में क्या आएगा? अच्छा, या तो n आएगा, n. That is एन n आएगा। import आएगा। दैट इज एन इंक पॉट। ठीक है, दैट इज एन इंक पॉट। ये रख दो। ओके। नेक्स्ट, क्या वह बैग है? Is that a bag? इज दैट अ बैग? ठीक है, क्लियर है। नाइस। देविका, इट्स योर टर्न। Yes, वह हवाई ma'am. जहाज है, वह हवाई जहाज है। That is airplane. दैट इज Airplane. एन एरोप्लेन। वह हवाई जहाज An नहीं है, aeroplane. हवाई जहाज नहीं है। That that is not an aeroplane. क्या वह हवाई जहाज है? Is that aeroplane? हाँ, इज दैट एन एरोप्लेन? ओके। नेक्स्ट, वह घास देखो, कोई चीज सिंगुलर है ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ठीक है। और कोई चीज प्लूरल है ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। अब जो चीज ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, जिन चीजों को हम गिन ही नहीं सकते, तो उसके साथ इज लगता है, ध्यान रखोगे। दैट इज ग्रास। अनकाउंटेबल है ना, दैट इज हेयर। दैट आर हेयर नहीं बोलेंगे। तो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। अब गिन ही नहीं सकते तो क्या बोले? इज लगेगा। जिसको नहीं गिन सकते उसके साथ भी क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है। यह पानी है, दिस इज वाटर, इज लगेगा। दीज आर वाटर नहीं लगेगा। तो जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ क्या लगना है? इज लगना है। सिंगुलर वाला बिहेव करना है, इज लगाना है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, वह Yes, ma'am. वो है, अलमारी है, अलमारी। अलमारी है। That is हाँ। an almirah. हाँ। क्या वे अलमारियां हैं? Those are an नहीं. Are those an almirah? एन क्यों अलमारियां लगाओगे बोले आप? कि अलमारी? अलमारी है ना. अलमारियां, क्योंकि आप देखो दोस्त लगा रहे हो, दोस्त किसको शो Are करता है? प्लूरल को। तो मैंने अलमारियां ही बोला are था। ठीक those है, तो वे almirah? अलमारियां हैं। हाँ। हाँ, आर दोस्त अलमिराज है ना, तो वहां पर वो प्लूरल हो जाएगा और ए और एन नहीं आएगा प्लूरल के साथ।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वह प्लेट है। That is a plate. हाँ, ये रस्सी है, रस्सी, रस्सी। Ma'am, what the meaning of rasi in English? हाँ, रोप, रोप है ना, ROPE, रोप है ना। दिस इज रोप, Rope. रोप बोलते हैं, रोप। हाँ, स्कीपिंग रोप बोलते हैं ना, रस्सी कूदना क्या बोलते हैं, स्कीपिंग रोप है ना। तो रोप मतलब हाँ, रस्सी, ठीक है, रोप, ROP, रोप। दिस इज अ रोप, क्या वे रस्सियां हैं? that वे बोल रहे हो? हाँ, अब मैं वे बोल रही हूँ, क्या वे रस्सियां हैं? Are those rope? आर Are दोस those rope? रोप्स, ठीक है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट। अब देखिए, इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको? इज और आर का ध्यान रखना है, पहली बात। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ में आर। ठीक, इतना क्लियर है ना सबको? Yes, sir. अब देखो, मैंने जो भी फॉर्मेशन बताई वो क्या था? यह कोई चीज है, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाना चाहूँ, ये कोई चीज थी, है ना। मैं क्या बोलना चाहूँ, यह पेन थी, अभी नहीं है, ये पेन थी। तो पास्ट होगी तो क्या चेंज होगा? हम लोग हिंदी में थी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। Helping verb. और कहीं कुछ चेंज नहीं करना आपको, क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बी फॉर्म होता है ना, बी फॉर्म बोलते हैं, होना मतलब क्या होता है? बी फॉर्म, ठीक है। तो बी फॉर्म का प्रेजेंट होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर। जो अभी हमने यूज किया, एम का तो यूज नहीं हुआ क्योंकि हम चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो इज और आर का यूज हमने अभी किया, गॉट इट। अब अगर वही चीज पास्ट होगी तो क्या बोलेंगे? कहाँ चेंज होगा? इज और आर की जगह पे आपका पास्ट के लिए जो बी फॉर्म का पास्ट होता है ना, वो होता है वॉज या वर। क्या होता है? वॉज वर, ठीक। तो वॉज कब यूज होगा? जब कोई चीजें सिंगुलर हो, ठीक। और वर कब यूज होगा? WERE कब यूज होगा? जब कोई चीजें प्लूरल हो। Plural. तो सेम सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग पास्ट में भी बना सकते हैं। चेंजेस इतना सा करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, ठीक। अब यही चीज अगर फ्यूचर में जाएगी, ये रस्सियां होंगी या ये पेने होंगी, वे पौधे होंगे, है ना। फ्यूचर की कल्पना है आपकी। तो बी फॉर्म का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा? विल बी। क्या होगा? विल बी, ठीक है। तो दिस इज अ रोप, दिस वाज रोप, दिस विल बी अ रोप, ठीक है। तो हम पास्ट और फ्यूचर में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। तो कोशिश करें, अब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब में। अब मैं सेंटेंस ले रही हूँ, आप उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बोलेंगे, ठीक है। मैं एक बोल के बता रही हूँ, दो दो सेंटेंस मैं बोल के बताती हूँ पहले। जैसे कि ये पेन है, दिस इज द पेन, ये पेन थी, दिस वॉज अ पेन। जहां मैंने इस बोला ना, अब मैं क्या बोलूंगी? वॉज। सिंगुलर के लिए यूज होगा वॉज का, ठीक है। तो जहां जहां आपने इसका यूज किया था ना, वही वही वॉज का यूज करना है। दिस वॉज द पेन। अब इसी को अगर फ्यूचर बनाना, ये पेन होगी, वो पक्षी होगा, ऐसे बोलते हैं ना फ्यूचर में भी। तो हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी अ पेन, दिस विल बी अ पेन, ठीक। तो ये हो गया दिस का। और अगर वो बोला रहेगा तो दीज वाला, जैसे दीज आर पेन्स, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? आर लग गया, प्लूरल है, तो यहाँ क्या Were. लगेगा? वर। दिस वर पेन्स। और उसमें कोई दिक्कत नहीं, विल वाले में, दिस विल बी पेन्स, गॉट इट। अब यही चीज अगर दैट वाला है, तो दैट इज अ पेन, दैट was a pen, that will be a pen, that is a pen, that was a pen, that will be a pen, okay। अब यही चीज प्लूरल में होगी तो those are pens, those were pens, those will be pens, so simple, ठीक है। कितने सारे सेंटेंस हमने सीख लिए, फॉर्मेशंस,
ठीक है। और हमको वर्ड्स तो आते हैं बहुत सारे, करनी क्या है, प्रैक्टिस। only we have to set our tongues in this language so that we can speak nicely. Okay, so are you ready again for the practice? ठीक है, चलिए आकांक्षा जी इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह घड़ी है। ओके ठीक है, कोई भी बोल सकता है। वह घड़ी है। This is a बोलो। watch. हाँ, वो घड़ी नहीं है। This isn't a watch. क्या वह घड़ी थी? नहीं, क्या वह, नहीं क्या नहीं बोल रहे ना, वह घड़ी थी। This was a watch. वह घड़ी होगी। This will be a watch. गुड। नेक्स्ट, वह अम, वह अखबार है। This is a वह newspaper. अखबार है। वह अखबार था। This was a newspaper. वह अखबार होगा। This will be a newspaper. दिस बोल रहे हो क्या? वह दैट Sure, that Yeah. will be a newspaper. हाँ, दैट विल बी अ न्यूज़पेपर। ठीक है। वह 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 स्विच है। That is a switch. वह स्विच था। That was a switch. वह स्विच होगा। That will be a switch. ओके। अमन, ये रबर है। रबर। This is a rubber. इरेजर। Yes. इरेजर और मिटाने वाला रबर बोल रही हूँ, ठीक है ना। इरेजर, दिस इज इरेजर। वो रबर, ये रबर, ये रबर था। This was a razor. ये रबर होगा। This will be a eraser. दिस विल बी इरेजर। क्या? ई, हाँ, गुड गुड गुड। दिस विल बी एन इरेजर। Will be an ठीक है, eraser. एन आएगा ना, एन वॉल है ना, वॉल साउंड है। ई, ई आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इरेजर। ठीक है। नेक्स्ट, कटहर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शॉर्पनर। शॉर्पनर, वे शॉर्पनर है, मैं कटहर बोल रही हूँ, शॉर्पनर ही बोल रही हूँ। वे शॉर्पनर्स हैं, ज्यादा है। क्या बोलोगे? हैं, दोज आर शॉर्पनर्स। पास्ट बोलो उसका। Those पास्ट, was sharpeners. हाँ, और वे शॉर्पनर होंगे। क्या नाम है? शॉर्पनर होंगे, होंगे। Those will sharpener. चलो, अमृता, यह कमल का फूल है। This is a lotus. हाँ, तो कमल का फूल है ना, कमल, ये कमल है ऐसा बोलूंगी तो दिस इज लोटस। ये कमल का फूल है, दिस इज फ्लावर ऑफ लोटस, ऐसा बोल सकते हो पूरा पूरा, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखोगे तो दिस इज फ्लावर Flower. लोटस, ऑफ लोटस, ऐसा बोल सकते हो। कमल का फूल, उसका मीनिंग भी लोटस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो वैसे भी। ये कमल का फूल था। This was a lotus. दिस वॉज लोटस। ओके, दिस वॉज अ लोटस। ओके, फ्लावर, और उसके बाद नेक्स्ट हो गया कमल का फूल होगा। This will be a flower of lotus. ठीक है। नेक्स्ट, वह अम, आप अपने से बोलिए एक आध न्यू वर्ड्स। चलो इलायची लेते हैं। यह इलायची है। इलायची क्या This बोलते हैं is a इंग्लिश? हाँ cardamom. हाँ, कार्डमम। इलायची नहीं है, This नहीं है। isn't a cardamom.
हाँ, क्या ये इलायची था? था। Was this a cardamom? was this a cardamom? Okay, next. आकांक्षा जी, it's your turn. ठीक है। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता। ओके, उनका नेटवर्क में भी इश्यू है। ओके आकांक्षा जी, आर यू देयर? मेरा बात वो मूवी मैं हूँ, मेरे मीटिंग बार बार वो बैक हो जा रहा है नेटवर्क के हाँ, वो कारण। मे भी तेज तेरे से पत्ता को क्या नेटवर्क। बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, बे लीफ। BAYLEAF, बे दिस लीफ। इज हाँ। ये तेज पत्ता नहीं है, नहीं है। दिस इज नॉट, है ना, बे लीफ। क्या ये तेज पत्ता है? हाँ, ओके। वह अम, जीरा है। मतलब देखो यहाँ पे एक एक ले रहे हैं हम, वैसे तो गिन नहीं सकते, लेकिन हम सेंटेंस फॉर ओनली सेक ऑफ मेकिंग सेंटेंस इन और नोइंग द वर्ड्स वी आर यूजिंग दैट। जीरा ज्यादा है, समझ लो, जा रहा है ना। क्या बोलेंगे जीरे, क्या बोलते हैं? सोचो सोचो, किसी को पता है? बोल सकते हो ना। अमृता, हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड, सब मिल के 1 महीने में। क्यूमिन सीड्स, है ना, क्यूमिन सीड्स, जीरा, क्यूमिन सीड्स, जीरा। ठीक है। क्या वह जीरा न, वो जीरा था, जीरा था। हम्म, था के लिए क्या बोलेंगे? दीज वॉज, है ना, दिस वॉज। हाँ, ठीक है, इस तरह से। और हम लेते हैं वह स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन। हम्म, हाँ, ही इज अ स्पाइडरमैन। हाँ, वो ही वाले में आ जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब देखो, वो एक्चुअली आएगा ही वाले में ही इज अ स्पाइडरमैन, ही इज अ स्पाइडरमैन। ठीक है, लेकिन अभी मतलब अब दीज का यूज करने के हिसाब से हम उतना सोच नहीं रहे हैं। एक वर्ड ले रहे हैं, अगर इसमें लेना हो, यह इंगित करना हो। हाँ, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। um और क्या लिए हम? चादर, है ना, चादर। और गद्दा लेते हैं, चादर लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेने को, है ना। वे गद्दे हैं, गद्दे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गद्दे। हाँ, ठीक है, क्या बोलते हैं? किसी को पता है तो बोल सकते हो ना। ओके, मैट्रेस, ओके, मैट्रेस, मैट्रेस। हाँ, मैट्रेस, तो दोज आर मैट्रेस। वे गद्दे थे, वे गद्दे थे। हाँ, वर ही आएगा, वर आएगा, प्लूरल है ना। हाँ, दोज आर मैट्रेस। वे गद्दे होंगे, वे गद्दे होंगे। हम्म, हाँ, दोज विल बी मैट्रेस। ओके, गुड, नेक्स्ट। सिद्धार्थ। If anyone can answer, so they can unmute themselves. Otherwise, I will go ahead. यस मैम, आई कैन। Okay, okay, yeah. ये चादर है, दिस इज बेड। बेडशीट। ये चादर थी। दिस वाज बेड से। हाँ, ये चादर होगी। दिस विल बी बेड से। हाँ, अब नॉर्मल चीजें भी ले सकते हैं, एडजेक्टिव भी ले सकते हैं। ये सही है, ऐसा बोलते हैं ना, ये सही है, क्या बोलेंगे?
बोलते हैं हम लोग, ये तो यूज करते हैं हम। This ये is सही right. है। हाँ, दिस इज राइट, This है ना, is right. दिस इज राइट। देखो ये सही है, सही है तो सही काउंटेबल है क्या? कुछ कोई चीज है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे नहीं। हमेशा दिस का यूज होगा, दिस इज राइट, दोज आर राइट नहीं बोलेंगे। कोई इंसान नहीं है ना, मतलब लोग के बारे में बात नहीं हो रहा। दिस इज राइट, ये सही है, ये सही बात है ना। दिस इज राइट, ओके, ये सही था, This ये सही was था। right. ये सही was होगा, ये सही होगा। This will be right. This will दिस be विल बी right. राइट, ओके। ये गलत है, बोलते ना ये गलत है। This is wrong. This is wrong. हाँ, दिस इज रॉन्ग, ये गलत नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत This नहीं is है। wrong. क्या ये गलत है? Is this wrong? इज दिस रॉन्ग? This is wrong. ओके, वह गलत था। This was wrong. It was वह wrong. गलत था, दैट वाज रॉन्ग। वह गलत था, है ना। दैट वाज रॉन्ग, वो गलत था, That ऐसे बोलते हैं दैट वाज रॉन्ग, वो गलत नहीं था। That wasn't wrong. wasn't wrong. हाँ, ये गलत हो, वह गलत होगा। He That will will be wrong. हाँ, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, Yeah. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, एक सेंटेंस सबके साथ बनाती हूँ, और आपको ना वैसी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 से 6 वर्ड्स लेना, नए नए लेना, ठीक है, प्रॉपर कोई चीजें लेना, और उसके बाद सब में सेंटेंस बनाना। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, कैसे करना है? जैसे मैं पेन के साथ बना के बताऊँ या कॉपी के साथ। दिस इज कॉपी, दिस इज नॉट अ कॉपी, इज दिस अ कॉपी? ओके, उसके बाद आपको उसको प्लूरल में शिफ्ट करना है। दीज आर कॉपीज, दीज आर नॉट कॉपीज, आर दीज कॉपीज? नेक्स्ट, that is a copy, that isn't a copy, is that a copy? Those are copies, those are not copies, are those copies? ठीक, उसके बाद पास्ट में आना। that was a copy, that wasn't a copy, was that a copy? ठीक, those were copies, those weren't copies, were those copies? ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में जाना। that will be copy, that will not be copy, will that be copy? Those were copies, those will be copies, those will not be copies, will those be copies? ठीक, तो ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितना पढ़ा है ना सब बोलना है आपको मन ही मन। इफ यू डोंट गेट टाइम टू राइट, इट्स देयर इज नो इश्यू, यू जस्ट मेक टू सेंटेंस ऑन योर माइंड। कोई चीज देखो और उसमें जितनी फॉर्मेशन थे वो कितने सेंटेंस बनाए हमने, 12 से 15 सेंटेंस बन गए, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सबके इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिलाओगे 20 सेंटेंस आराम से होते हैं। ठीक है, आपको उसी को बनाना है सिर्फ मन में अपने। ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद व्हेन वी विल बिगिन टुमारोज क्लास ना, सो इन दैट टाइम वी विल रिवाइज दैट, हम यही रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट लेती हूँ मैं आप लोग को, और थोड़ा सा इंट्रो देख लेते। कल आप लोग को इंट्रोडक्शन भी देना है अपना, अपने हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करके ना आप लोग। एक पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, मे भी हो पाए तो। आपको अपना नाम बोलना है। नाम कैसे बोलेंगे हम अपना? माय नेम इज बोलते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं? माय नेम इज एकता, एकता लालवानी। दिस इज अ फॉर्मल वे टू टेल योर नेम। और क्या बोलते हैं हम इनफॉर्मल में? क्या बोलते हैं? माई सेल्फ एकता। और क्या बोलते हैं? दिस इज एकता। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? I am एकता, I am एकता, I am myself, this is, और you can say my name is। 4 तरीके हो गए नाम बताने के। ठीक है, तो ये हो गया। अपनी स्टडीज बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हो। आप कहाँ रहते हो? I live in दली राजरा, I live in दली राजरा, I am from दली राजरा, I belong to दली राजरा। ओके, I come from दली राजरा। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको रीड करना, ऐसे बोल सकते हैं हम। और उसके अलावा जैसे हम आपको अपना वो बताना है, स्टडीज बतानी है। आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन,
है ना। तो इस तरह से वेज होते हैं। एक बार आप उस पीडीएफ को रीड करके आओगे, हम कल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले यू विल हैव टू प्रेजेंट सम सेंटेंसेस, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, कुछ नए नए वर्ड्स लेके आना और सेंटेंस प्रिपेयर करके आना। और आपको बैक टू बैक ना आप कम से कम 2 से बना के आओगे, वो बोलोगे कल, ठीक है। तो सबके नए नए वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, तो वो कंबाइंड हो जाएगा, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे इससे हमको, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दो दो नए वर्ड्स भी आप करके आते हो तो 12 वर्ड्स हम नए सीख जाएंगे, ठीक। दूसरी बात, पीडीएफ से एक बार रीड करके आना ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन, और कल हम यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक। सो वी विल ज्वाइन sharp 9 p.m. tomorrow. Thank you for joining. Okay. Okay. Good night to all of you. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night.